Let's move on to the winners now. So I'll introduce each of the warriors one by one, starting with Tarun and Mr. Sunil Shetty to give away the medals. Sudhir Babu, Raghu, Tara Ratna, Prince, Nikhil, Samrat, Chaitanya, Sushant, Dharam Teja, Adarsh, Nand Kishore, Harish, Vishwa, Kayum, and last and not the least, Sachin Joshi. They're looking so smart in these jackets. Pretty overconfident you got the jackets made. What would have happened to the jackets if you would have lost? Also Mr. Srikanth, Mr. Sanobar Beg, and finally, Akhil, the captain. The all-rounder, the wicket-keeper, the bowler, the batsman, and the captain. There's a medal for him. The winner's trophy also to be given by Sunil Shetty. Winner's trophy, where is the winner's trophy? That's what you played for. This is what it was all about. Huh? Where? Vishnu, please. Okay. I'd like the actual captain of the Telugu Warriors, Venkatesh Mama. Thank you, Mama, please. I am taking it only after he takes it. All right. There you go, the champions. No, we need to. No, just wait. Finally, how does it feel, man? Is it better than winning a acting trophy? This is better or Filmfare Award? We've been trying for 5 years, like you said. We've been trying for 5 long years. And we always felt we were a team capable. And really, to tell you the truth, I swear each and every player there will agree with me. We, in the beginning, the first game, we said we're going to do this for him. And I called him before we went out on the field. He was on speaker and he said, and we told him we're going to do this for him. I swear this is from the bottom of my, we did this for him. I've got a feeling of deja vu. You know, this is what Virat Kohli and everybody said about Tendulkar, that they were winning the World Cup for Sachin Tendulkar. So that reminds me of that. But I think, you know, you have to look after him because he was going berserk. You know, he needs a massage tonight. That's how passionate he is. That's how he drives the team. And we get all our energy exactly from his heart because we know wherever he is, he's supporting us like this. So this is for him. Venkatesh, I know how dear that is to you because I know from the first year onwards, you were one of the pillars to get this thing going. And I think you should be very satisfied today. Really very happy and thank you all the boys. I'm feeling so good. Never ever before I'm going to feel so good again. Thank you so much. Next year, don't worry. We'll give. So there you go. That's the end of the presentation. We have had a fantastic night. And what a presentation as well. A lot of emotion. And look at that party going on. It's going to be party all night. And the host team is taking away the glittering trophy. That's all from us. तो अजय ये देखा हमने प्रेजेंटेशन और बड़ी खुशियाँ जो बिल्कुल जाहिर हो रही है तेलुगु वॉरियर्स की और बड़ी जीत। दिलीप वेंगसरकर का भी यहाँ पर अहम रोल था। आपने बातचीत हुई आपकी उनसे? जी हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनका रोल था, बहुत ज़्यादा योगदान था क्योंकि हर मुकाबले से पहले मैं देखता था जिस प्रकार अभ्यास कराते थे, बताते थे गेंदबाजों को, अब जब बैटिंग के लिए बैट्समैन जा रहे हैं ओपनर्स उनको सलाह देते थे। ऐसा जब महान खिलाड़ी, एक लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट आपके साथ जुड़ा हो तो अपने आप जो टीम की परफॉर्मेंस है उसका जो स्तर है वो बढ़ता है और बिल्कुल साफ जाहिर हुआ। पर इस लम्हे की आप बात कर रहे थे कि 5 साल के बाद आया है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, पर कहते हैं ना कि अंत भला सब भला, अंत में जीत मिली है, ये खुशी का एक मौका है और ये जो पार्टी है ये रात तक जाएगी, ये अभी नहीं है। ये जो चैंपियन बने हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने घर पे बने हैं, होम क्राउड के सामने बने हैं और जितने भी इनकी तारीफ की जाए तेलुगु वॉरियर्स की उतनी कम है।
और सीसीएल का भी सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगले साल हम देखेंगे एक और टीम पंजाब की टीम हो रही है। अयाज भाई, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पंजाब से काफ़ी साल खेला, 12-13 साल रणजी ट्रॉफी खेला, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला, और जब पंजाब की टीम आती है, कोई भी पंजाब का खिलाड़ी भी आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अगले साल और मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो सीसीएल है बड़ी हो रही है और रोमांचक हो रही है, और जो स्तर है खिलाड़ियों का, जो खेल है वो भी बढ़ रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। खिलाड़ी तो हमने पंजाब के देखे नहीं, लेकिन दलेर मेहदी को आज जरूर देखा है, उनकी आवाज़ भी सुनी है, तो उम्मीद यही है कि एक अच्छी मजबूत टीम लेके आएंगे। एक चीज मैं बताऊं, जब पंजाब की टीम होगी रौनक अपने आप आएगी। मतलब जहां पे पंजाब के लोग हैं, पंजाब के मतलब खुशबू है आप कह सकते हैं, वहां पे जो रौनक है उसकी कमी नहीं होगी। तो वो जो रौनक है बढ़ेगी, और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है जो सीसीएल, जैसे मैंने कहा, ये बड़ा हो रहा है, और जो स्तर है वो बड़ा हो रहा है, जो एक्साइटमेंट है वो बड़ी हो रही है, और जो खेल का स्तर है वो भी अब जबरदस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर हर कोई जो जुड़ा हुआ है इस टीम के साथ, तेलुगु वॉरियर्स के साथ, वो ले रहा है एक पर मुझे लगता है यास भाई तस्वीर। एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए नए राइनोज की भी। जरूर आज हार गए, मतलब अगर आप देखिए 2 बार चैंपियन भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कल उन्होंने बहुत बढ़िया मुकाबला जीता। कर्नाटका बुलडोजर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको हराया है। आज शायद उतना बढ़िया खेल नहीं पाए, पर ये क्रिकेट में होता है। आप इतना फॉलो करते रहे हैं, इतने ज्ञानी हैं क्रिकेट के बारे में, कि कई बार आपका दिन नहीं होता, और शायद आज उनका दिन नहीं था, पर आज तेलुगु वॉरियर्स का था, और ये काम को जीत मिली। और दूसरा एक बार हमने देखा है कि पूरी सीसीएल की हिस्ट्री अगर आप देख लें, तो डोमिनेशन रहा है साउथ की टीम्स का, बिल्कुल, या चेन्नई हो या कर्नाटका, और आज जैसे हमने देखा तेलुगु वॉरियर्स। बहुत बढ़िया आंकलन किया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल अगर आप देखें वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, अभी वो पिछड़ रहे हैं, खिताब जीता नहीं है। मुंबई भी बहुत करीब पहुंचती है। मुझे इस बार मुंबई हीरो से बहुत उम्मीदें थी, जो उनका बैटिंग क्रम है, जिसका उन्होंने चेस किए हैं, पर डोमिनेशन रहा है, दबदबा रहा है साउथ की टीम्स का, और आज भी एक साउथ की टीम ने विजय हासिल की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले साल बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि अगले साल कौन विजेता रहता है। और मुझे इसमें लग रहा है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है ना, वो स्कूल्स क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ में, वो बड़ा स्ट्रांग है, और इसी वजह से कि